Hello children. Today's topic is the ascending and descending order of numbers. First, ascending order. What is ascending order? Let's see. Ascending order means to arrange numbers in increasing order, that is, from the smallest to largest. For example, some numbers are here 12, 14, 13 and 15. 12 is the smallest number and 15 is the largest number. Let's arrange them in ascending order. So, first will come 12 because it is smallest. Next 13. After 13 will come 14. And in the last position 15 because it is the largest number. One more example is here 29, 23, 27. All tens places are same. So we will arrange them according to ones place. Here 9 is the largest number and 3 is the smallest. So 23 is the smallest and 29 is the largest. Now arrange them according to ascending number. 23 is the first number, next 27 and last one is 29. Now next is descending order. What is descending order? Let's see. Descending order means to arrange the numbers in decreasing order, that is from the largest to smallest. So largest to smallest is the descending order. For example, 27, 25, 26, 28 all have same tens value. So according to ones value, 28 is the largest and 25 is the smallest number. Now arrange them in descending order. So 28 will be the first, next 27, after 27 26 and the last one is 25 because 25 is the smallest. One more example is here 13, 35, 28. 13 is the smallest number, 35 is the largest number. Now arrange them in descending order. 35, next 28 and the last one is 13. So what is ascending and descending order? Ascending order means arrange the numbers from the smallest to largest. And descending order means arrange the numbers from the largest to smallest. Dear students, have you watched the video? The video was related to ascending and descending order given on page number 6. So kindly open page number 6 in your books. On page number 6, first of all mention date. Today is 20th May. Okay, so question number 10 is write 63, 72, 55, 38 and 96 in ascending order and descending order. So part A is ascending order and part B is descending order. So as you know dear, ascending order is when we write values from smaller to bigger. Okay, first of all we will write the smallest number and at the end we write greater number. Okay, and in descending order first of all we write 96. For example, 96 is greater number and at the end we write the smallest number. Okay, so let's start part A, ascending order. So the first digit is given to you, which is 38. It is the smallest digit. So after 38, the biggest digit, the second biggest digit is 55. Okay, so we will write 55 here. So after 55, the third greatest digit is 63.
So we will write 63 after 55. Then we will write 72 and at the end we will write 96 because 96 is greatest digit from all the other digits. ठीक है, बाकी तमाम डिजिट से हमारे पास 96 सबसे बड़ा डिजिट है. इन तमाम डिजिट्स में सबसे बड़ा डिजिट हमारे पास 96 है. दैट इज़ वाई वी विल राइट 96 एट द एंड ऑफ all the numbers. Okay, so we have completed our part A ascending order, in which we wrote 38 because 38 is smallest digit, and at the end we wrote 96 because 96 is a greatest or biggest digit. Okay, so now we will do part B. In part B, as you know the definition of descending order, first of all we will write the greatest digit, and after that we will write, and at the end we will write the smallest digit. Okay, so 96 is already written here. So after 96 we will write the other smallest digit which is smaller, which will be smaller than 96. So we will write 72 जी. 72 के बाद अब हम क्या लिखेंगे? 96 हमारे पास ग्रेटेस्ट डिजिट था, तो 96 के बाद हमने 72 लिखा क्योंकि 72 अब 96 के बाद हमारे पास दूसरा बड़ा डिजिट है. ओके, सो आफ्टर दैट we will write 63 because now 63 is smaller than 72 and bigger from all the other rest of the numbers. Okay, after 63 we will write 55 and then we will write 38 because 38 is the smallest digit. So according to ascending order, first of all we will write the greatest and at the end we will write the smallest digit. Okay, so as you can see we have completed our part A and part B of question number 10. So I hope आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी कि सबसे पहले हमने बिगेस्ट डिजिट लिखा which was 96 in ascending order, and सबसे एंड में हमने 38 लिखा because 38 is the smallest digit from all the other digits. ठीक है, so after that now come towards page number 7. पेज नंबर 7 में आपके पास जो है वो है रिमेम्बरिंग 100. नाउ सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन विद सिंगल डिजिट नंबर्स which were ones, with double digit number which were tens, and now this is the time that we will do the triple digit number, the 3 digit number, and they are called 100. ओके, तो मैंने आपको वाइट बोर्ड में अपने प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डिटेल में समझाया भी था सिंगल डिजिट्स, डबल डिजिट्स, ट्रिपल डिजिट नंबर. तो अब 3 डिजिट नंबर की बारी आ गई है. अब हम 3 डिजिट्स के बारे में पढ़ेंगे. तो ये सारा पेज आपका जो है वो उन्हीं बातों, इनमें वही बातें हैं जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह से हमारे पास अब 100 बनेगा. तो देखें 100 हमारे पास 3 डिजिट नंबर होता है. आदिल राइट्स 100 इन कॉलम्स लाइक दिस. अब हम 100 इस तरह से लिखेंगे. ये सारा पेज मैं आपको ऑलरेडी वाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. ओके, सो कम टूवर्ड्स पेज नंबर 8. डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 8 को एक्सप्लेन करने से पहले आई want to explain the whole topic of ones, tens, 100 on board. So let's go towards the board. Okay, white board पर मैं आपको explain करती हूँ, उसके बाद हम बुक पर आकर इसको solve करते हैं. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. आज हमारा जो है वो लेक्चर 6 है और उसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो वंस, टेंस और 100 है, जो हमारे बुक पर पेज नंबर 6 से 12 तक का है. ठीक है, और ये आपको रिटर्न वर्क में भी गया है. तो हमने पेज 6 पर काफ़ी डिटेल में अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था वंस और टेंस और 100 को. मैंने आपके लिए प्रॉपर बनाए थे. आप एक बार उस वीडियो को भी देख लें ताकि आपकी रिवीजन हो जाए. अब आज अगेन हम आप टेंस और वंस और 100 का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगी थोड़े से और डिफरेंट तरीके से, और यही आपका बुक में भी है. पेज नंबर आपका जो है वो 8 है. 8 पेज नंबर पे आपका ये टॉपिक गिवन है. तो आइए चलकर जरा देखते हैं.
ये हमारे पास जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वंस किस तरह से हमारे पास आते हैं, वंस और टेंस में क्या डिफरेंस है। तो वंस हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल नंबर्स होते हैं, मतलब जो हमारे पास सिंगल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास वंस में आते हैं। आपका बुक के ऊपर पेज नंबर 8 पर इसी तरह से छोटे छोटे बॉक्स गिवन है। ये छोटे छोटे बॉक्स जो है अगर ये अलग-अलग इस तरह से गिवन है, इसका मतलब वो आप लोग वंस कंसीडर करोगे उन नंबर्स को, क्योंकि ये अलग अलग से हमारे पास यूं पड़े हुए हैं पेज के ऊपर, अलग से गिवन है। उसके साथ ही एक बड़ा सा ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस है। इस तरीके से ये बॉक्सेस आपको ये बता रहे हैं कि जब अलग अलग बॉक्सेस पड़े होंगे, बिखरे हुए पड़े होंगे, वो इस तरह सेट की शक्ल में नहीं होंगे जिस तरह से ये है ये, उसका मतलब कि वो तमाम नंबर वंस में काउंट होंगे। लेकिन अगर आपके पास इसी तरह से एक बड़ा ब्लॉक बना होगा, उस ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं वो फिक्स होंगे, तो इसका मतलब वो आपको टेंस शो होगा। जिस तरह से देखें ये प्रॉपर एक ब्लॉक है, इस पे देखें, अब मैंने आपको साइड पे नंबर भी दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप लोग कंसीडर कर लो कि ये 1 है, लेकिन 9 में जब 1 एक और आप प्लस कर लोगे तो वो बन जाएगा 10। इसीलिए कहते हैं कि हर 10 वंस इक्वल टू 110 होता है। ठीक है, ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है यही बात कि हमारे पास 10 वंस इक्वल टू 110 बनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है, ये प्रॉपर मैंने आपको पूरा एक 100 का ब्लॉक बनाया है आपके लिए, जो आपको एक स्क्वायर की शक्ल में शो हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहाँ 11 12 13 अप टू 20, फिर 21 अप टू 30, फिर 31 अप टू 40, फिर 41 अप टू 50, फिर 51 अप टू 60, फिर 61 अप टू 70, फिर 71 टू 80, फिर 81 टू 90 और फिर 91 टू 99। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर 99 की बात करते हैं तो यहाँ तक तो आपका बनता है ना 10, उसमें फिर जब 1 प्लस होगा तो आपके पास 3 डिजिट नंबर बनेगा, जो कि फिर 10 से 100 में कन्वर्ट हो जाएगा वो डिजिट। ठीक है, क्योंकि वो फिर 3 डिजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बात समझाई थी कि 10 टेंस इक्वल टू 100। समझ आइए आपको इस बात की कि किस तरह हमारे पास 10 वंस मिलकर 110 बनते हैं और किस तरह 10 टेंस मिलकर 100 बनते हैं। इन्हीं को फिर आपने अबैकस में आपने पुट करना है। यहाँ पर ये देखें, आपको यहाँ पर ये 2-3 पेजेस पर नजर आएगा, हर एक ही सारा तरीका है, आपने गिनना है, गिनकर ही लिखना है, काउंट करना है, लेकिन हर एक को उन्होंने हर पेज पे अलग अलग तरीके से करके दिया हुआ है। आप समझ लो, फिर हम बुक पर चलकर मैं आपको हर पेज पर अलग अलग समझाती हूँ। कुछ पार्ट्स मैं करूंगी, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आप खुद करोगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मेंशन क्या होगा, वंस, उसके बाद क्या मेंशन होगा, टेंस, उसके बाद क्या मेंशन होगा, 100। इसी तरह सिंगल डिजिट होंगे। देखिए अब यहाँ कितने बॉक्स है, 1 2 3 4, यहाँ पर अब 4 वंस मुझे गिवन है ना, बिकॉज दीज आर इंडिविजुअल बॉक्सेस। ये प्रॉपर एक सेट में नहीं बने, जो इंडिविजुअल बॉक्सेस आपको अलग से यूं नजर आएंगे, जो कि इस बॉक्स में की शक्ल में नहीं बने होंगे, वो आपके पास वंस में काउंट होंगे, बिकॉज दीज आर इंडिविजुअल नंबर्स, अकेला नंबर है। तो ये 4 है, तो देखिए यहाँ मैं लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 4, और मैं यहाँ बनाती हूँ 1 2 3 4। समझ आई? अब ये मेरे पास क्या है, ये 10 है, तो देखिए यहाँ पर अब 4, ये 4 वंस में आपको गिवन थे ना, क्योंकि मैंने आपको कई इंडिविजुअल नंबर है, यहाँ तो मैंने 4 बीट्स लगा दिए। उसके बाद टेंस में मुझे सिर्फ ये एक ही ब्लॉक गिवन है। अगर इसके साथ मुझे दूसरा ब्लॉक गिवन होता ना, तो मैं कहती कि मेरे पास 20 है। अभी मेरे पास एक ही ब्लॉक गिवन है। एक ही ब्लॉक गिवन होने का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर एक ही बीट लगाऊंगी। ठीक है, कितने, 1 बीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे एक ही स्क्वायर गिवन है ना, मतलब 100 का एक ही ब्लॉक गिवन है, पूरा का पूरा स्क्वायर गिवन है ना, तो इसलिए मैं 100 में भी 1 लगाऊंगी। तो ये मेरे पास टोटल कितने बने, यहाँ पर मैं टेंस के लिए भी 1 लगाऊंगी और यहाँ 100 के लिए भी 1 लगाऊंगी। जस्ट मैंने वंस के लिए 4 लगाए। अब आप इस बात को समझो कि देखिए यहाँ पर 100 का एक स्क्वायर गिवन है, पूरा का पूरा एक स्क्वायर है, दैट इज व्हाई मैंने 100 के नीचे पुट किया है 1 और मैंने एक ही बीट पुट किया। उसके बाद टेंस में मुझे जस्ट 1 to 10 नंबर ही गिवन है, यानी एक ही पूरे का पूरा मुझे ब्लॉक गिवन है, इसलिए मैंने टेंस में भी 1 पुट कर दिया। उसमें मुझे वंस में कितने गिवन है, वंस में मुझे जस्ट 4 डिजिट्स गिवन है, इसलिए मैंने 4 बीट्स लगाकर नीचे लिख दिया 4। तो टोटल यहाँ पर मुझे कितने वैल्यूज गिवन है, टोटल मिलाकर मेरे पास ये टोटल बन क्या रहा है, तो मेरे पास बन रहा है 114। क्या बन रहा है, 114। बस आपने याद रखना है, ये हमें वंस शो कर रहा है, ये हमें टेंस शो कर रहा है और ये हमें 100 शो कर रहा है।
ये पूरे का पूरा। तो ये 100 है, ये हमारे पास 110 का बॉक्स था, क्योंकि देखिए ये ऊपर सारे वंस में आ रहे हैं। वंस के बाद जब वन एक शामिल हो गया तो हमारे पास टेंस बन गया, ठीक है। और ये हमारे पास 4 जो है वो वंस में आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपने माइंड को क्लियर कर लो कि देखिए यहाँ पर 100 में एक स्क्वायर गिवन है तो 1 लगा, यहाँ टेंस में एक ब्लॉक गिवन था तो 1 लगा, और यहाँ वंस में मुझे 4 डिजिट्स गिवन थे तो मैंने यहाँ 4 लगा दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको अच्छे से। चलिए अभी साथ में चलते हैं और आपको जो गिवन है बुक में उसको थोड़ा बोर्ड पे करते हैं। अब यहाँ पार्ट बी आपको गिवन है, आपके पास पार्ट बी पेज नंबर 10 पे है, ठीक है। तो पेज नंबर 10 में जो पार्ट बी है वहां पर देखें, अब आपके पास 3 डिजिट्स आपको नजर आ रहे हैं पार्ट बी में। ये 841 है, 841। तो देखिए मैं जब बोल रही हूँ तो ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि 800 मैं बोल रही हूँ और फिर मैं 40 बोल रही हूँ और फिर मैं 1 बोल रही हूँ। 40 ऑलरेडी आपको ये वो सुनाई दे रहा है कि 40 आपको टेंस ही में शो होगा, 1 आपको वंस में ही शो होगा और 800 आपको 100 में ही शो होगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ राइट साइड से, क्योंकि हम स्मॉलर टू बिगर जाते हैं, ठीक है, स्मॉलर डिजिट से बिगर की तरफ जाते हैं। तो ये 1 है, यहां मैं लिखती हूँ 1 वंस, ठीक है। अब मैं यहां पर लिखती हूँ 4 10 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे टेंस, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास 8 है तो 800 में आ रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे 800, ठीक है। तो देखिए मैंने उल्टे साइड से इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि हमारे पास स्मॉलेस्ट यहाँ वंस है। आपने अगर लिखना हो तो आपको इस तरह से मुश्किल होगा, आप 100 से स्टार्ट करो, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 1 से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमने वहां पर पढ़ा डिजिट जो था वो सबसे पहले वंस के डिजिट्स हमने पढ़े थे, इसलिए वहां यहाँ पर अब 1 वंस है, 4 टेंस है और यहाँ 8 आपके पास क्या है 100 है। तो देखिए अगर मैं यहाँ लिखूं तो आपको ये इस तरह से नजर आएगा 840 एंड ये 1। अगर मैं इनको देखो प्लस करती हूँ तो क्या बनता है 0 0 1, जब आपस में प्लस होंगे तो वो क्या बनेंगे 1। उसके बाद 4 और 0 जब आपस में प्लस होंगे तो डेफिनेटली जब 0 में 4 प्लस होगा तो 4 आपके पास वापस आएगा। 8 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो 8 भी एज इट इज आपके पास नीचे आएगा, तो क्या बना वही बना ना 841। तो ये आपके पास टेंस है, ये आपके पास 100 है और ये वंस है, क्योंकि देखो ये 2 डिजिट हैं इसलिए ये टेंस है, ये सिंगल डिजिट है इसलिए ये वंस है, और ये 3 डिजिट्स हैं इसलिए ये आपके पास 100 ऑटोमेटिकली शो हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इन बातों को और से देखो, ये डबल डिजिट है, ये सिंगल डिजिट है, यही कॉन्सेप्ट मैंने वहां आपको बताया भी है कि टेंस में डबल डिजिट होता है, वंस में सिंगल डिजिट होता है और 100 में ट्रिपल डिजिट होता है। अब यहाँ पर हम लोग स्टिक्स में पुट करते हैं बीट्स को, वंस हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 बीट आएगा। उसके बाद देखो टेंस में हमारे पास क्या है 4 है, तो यहाँ पर टेंस में हमारे पास 1 2 3 4 बीट्स आएंगे, और 100 में 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स आएंगे। पार्ट बी मैंने आपके लिए कर लिया, रिमेनिंग तमाम पार्ट्स आप लोगों ने खुद करने हैं, ठीक है। देखिए अब हम एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है ये डिफिकल्ट है कॉन्सेप्ट समझना, ठीक है। तो ये देखिए वंस टेंस और ये 100 आपको गिवन है। अब आपके माइंड में आता होगा कि चलिए ठीक है, मैडम कहती है कि वंस है, वंस में हमें अलग अलग नंबर्स तो गिवन है, तो टेंस में मैडम कैसे हमें एकदम 10 आ जाता है, तो हमें यहाँ पर और भी तो नंबर्स गिवन है, तो मैडम क्यों कहती है कि ये टेंस है, तो बस जैसे ये 10 आ जाएगा आप कहोगे कि ये टेंस है। ये एक्चुअली आप थोड़ा सा इसको दोबारा समझ लो कि अलग अलग इंडिविजुअल एक नंबर जो होता है ना, एक नंबर, वो एक नंबर हमेशा वंस में आता है। जैसे अब 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इनके साथ देखिए दूसरा डिजिट तो नहीं है ना, इस वजह से ये वंस है, तो ये हमारे पास सिंगल डिजिट्स है, तो ये वंस कहलाते हैं। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं टेंस की तरफ तो वंस ही कन्वर्ट होता है ना टेंस में। तो देखिए 9 तक आप अपने माइंड में रखो, देखें मैं आपको बताती हूँ, 9 तक आप माइंड में रखें कि ये वंस ही है, 9 तक वंस ही है, लेकिन जो ही 9 के बाद 10 आ जाता है तो बस वो हमारे पास वंस कन्वर्ट हो जाते हैं, सडनली टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। वो टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये डबल डिजिट आ गया है। जब डबल डिजिट आ जाएगा तो बस वंस कन्वर्ट हो जाएगा टेंस में, इसीलिए कहा जाता है कि 10 वंस हमेशा एक 10 बनाते हैं, ठीक है। और 100 का कॉन्सेप्ट तो
आसान है, वो तो आपके पास ट्रिपल डिजिट नंबर होते हैं, तो वो हमारे पास 100 कहलाते हैं, लेकिन उसमें भी 10 टेंस मिलकर फिर 100 बनता है। बस अपने माइंड में आपने ये रखना है कि सिंगल डिजिट वंस होंगे, डबल डिजिट टेंस होंगे और इसी तरह फिर 100 ट्रिपल डिजिट होंगे। अब यहाँ पर आपके माइंड में आ रहा होगा कि 1 क्यों हमने लगाए, वो 1 हमने इसलिए लगाया है कि यहाँ पर देखिए वंस में तो 4 था, 4 तो एज इट इज आ गया, 100 में जो था वो 1 था ना, क्योंकि वो एक ही आपको पूरे का पूरा 100 गिवन था, एक स्क्वायर का बॉक्स गिवन था, इसलिए यहाँ पर हमने 1 लिखा। अब 100 टेंस था तो टेंस में भी तो देखिए पूरा एक ही आपको गिवन है ना। अगर इसके साथ अभी आपके पास बुक में है, अगर इसमें देखिए आपके पास एक दूसरा इस तरह से बना हो, ये ऐसे, और ये उसमें भी इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो, तो फिर आपके पास ये 2 टेंस होंगे। क्या होंगे? 2 टेंस होंगे आपके पास। 2 टेंस इसलिए होंगे कि अब ये एक ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, ये 10 है और 10 के साथ 10 और प्लस करें तो क्या बन जाते हैं? 20 बन जाते हैं। तो 20 टेंस तो नहीं बोलते हम, तो 2 टेंस बोलते हैं ना, इसीलिए तो यहाँ पर फिर मैं एक दूसरा बीट लगा दूंगी। ठीक है, बस ये आपने माइंड में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरह एक स्क्वायर है, दूसरा अगर ये बड़ा सा स्क्वायर आपको साथ में गिवन हो तो फिर आप कहेंगे कि मेरे पास 200 है। ठीक है, मतलब 200 आपके पास आ जाएगा ना, एक तो वो स्क्वायर हो जाएगा, एक ये स्क्वायर हो जाएगा, तो आपके पास फिर 200 आ जाएगा। तो फिर मैं यहाँ एक और बीट लगा दूंगी, बस इस बात को। और फिर ये तो 1 1 नहीं रहेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। समझ आइए आपको? तो आई होप आपको ये मैं काफी डिटेल में अगेन समझा चुकी हूँ। प्रीवियस लेक्चर भी हमारा 1 और 10 से रिलेटेड था कि ये किस तरह से किया जाता है और कैसे 1 टेंस में और 10 100 में चेंज होता है। आपने इसको अच्छे से रिवाइज करना है। Dear students, after the explanation of 1s, 10s and 100 on whiteboard, now we will do the books exercises. So kindly open your books, page number 8. So as usual, first of all, we will mention date. So today is 20th May. So question number 1 is count and write, then draw beads on the abacus. अब हमने क्या करना है, हमने काउंट करना है और फिर हमने बीट्स बनाने हैं। ठीक है, और एबिकस में बीट्स बनाने के बाद जो भी हम काउंट करेंगे उसको हमने यहाँ लिखना भी है। सो ये तमाम चीज़ें मैं आपको वाइट बोर्ड में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जी। तो पेज 8 पर हमारे पास पार्ट ए ऑलरेडी सॉल्व्ड है। पार्ट ए के सॉल्व होने के बाद हम अपने पार्ट बी की तरफ चलते हैं। तो मैंने आपको कहा था ना, जो अलग अलग से हमारे पास बॉक्सेस होंगे, हम उन बॉक्सेस को गिनेंगे तो वो हमारे पास किस में आएंगे, वो हमारे पास वंस में आएंगे। अब ये देखें, ये अलग अलग आपके पास छोटे छोटे बॉक्सेस गिवन है, ये इंडिविजुअल नंबर्स आपको शो कर रहे हैं, तो ये आप लिखेंगे वंस में। देन आपके पास एक बड़ा ब्लॉक होगा और उस ब्लॉक के अंदर छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे, ये आपको यहाँ गिवन है, ये आपको शो कर रहा है कि ये टेंस है। और फिर उसके बाद आपके पास ये एक स्क्वायर शेप गिवन है, ये पूरा 100 है, तो ये आपको एक ही गिवन है फ़िलहाल, तो ये आपको 100 शो कर रहा है कि आपने यहाँ लिखना है 100। तो चलें पहले काउंट करते हैं, लेट्स काउंट दीज boxes 1 2 3 4 5 6 7. So we will write 7 in ones. Okay, in ones we will write 7 and we have written it. Now in tens we will count these 1 2 3. ओके, ये तो आपको पता है कि ये 10 के हैं ना, तो इनको आपने कैसे गिनना है कि ये टेंस में हमारे पास है 10 30 20 एंड 30। तो देखें, ये हमारे पास 10 का, फिर ये भी 10 है, फिर ये भी 10 है, तो यहाँ पर हमने जब गिना तो ये भी 10, उसके बाद ये 11 to 20 और फिर ये हमारे पास 21 to 30। तो ये टेंस में हमारे पास क्या आ रहा है, ये टेंस में हमारे पास आ रहा है 30। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे 3 हमने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ये बन गया 37। ठीक है, क्या बन गया 37, इसलिए हम यहाँ पर जस्ट गिन रहे हैं कि ये 3 है, हमने यहाँ 3 लिखा, लेकिन ये 3 नहीं है, ये 30 है। तो साथ में हमारे पास वंस भी था ना, तो वंस में तो हमारे पास 7 है, तो वो 7 हमने जब टेंस में प्लस किया तो वो बन गया 37, इसलिए हमने यहाँ 7 लिख लिया और यहाँ 30 की जगह हमने 3 लिखा, क्योंकि यहाँ हमने वंस को इसके साथ
साथ प्लस करके लिखना था, ठीक है। अब 100 हमारे पास क्या है, 100 हमारे पास 1 ही है, तो इसलिए हम इसको 1 ही लिखेंगे यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, 137, ठीक है। अब हम एबेकस में बीट्स बनाते हैं, तो वंस में कितने बीट्स बनेंगे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। आपने छोटे छोटे बनाने हैं और नीट बनाने हैं, ठीक है। देखिए प्यारे प्यारे नीट बनाने हैं। अब 10 है तो 1 2 3, ठीक है। अब 100 है तो 100 में हमारे पास एक ही आएगा, ठीक है। तो समझ आइए आपको, ये हमारे पास 137 है, ठीक है। तो आपने जस्ट देखना है इसको यहाँ पर कि ये जितने होंगे आपने टेंस में उतने लिखने हैं, क्योंकि ये पूरा एक 10 है, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एक 10 है। अब यहाँ पर इसी तरह से देखें 2 गिवन है वंस में, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। अब यहाँ पर आपको एक गिवन है ना, तो यहाँ आप लिखेंगे 1, तो देखेंगे हमारे पास क्या बन गया, 12। अब ये हमारे पास 200 है ना, क्योंकि हमें 2 स्क्वायर्स के गिवन है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। तो ये क्या बन गया, ये बन गया 212, ठीक है। तो आप नीचे लिखेंगे 212। अब बीट्स बनाने हैं, तो ये 1, ये 2, फिर यहाँ पर 1 और फिर यहाँ पर 2, ठीक है। तो 212 हो गए हमारे पास, सही है। अब बाकी के आपने खुद करने हैं, पार्ट डी और पार्ट ई आपका होमवर्क में आ जाएगा, ठीक है जी। अब पेज 8 की तरफ आ जाएं, उस पर भी सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन डेट जी। तो डेट लिखने के बाद पार्ट ए ऑलरेडी सॉल्व्ड है, पार्ट बी आपके पास यहाँ पर गिवन है, और ये एज इट इज़ है बच्चे, जैसे आपके पास पेज 8 पे था, जस्ट आपके पास एबेकस और बीट्स नहीं बनाने। तो ये भी ऑलरेडी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, जस्ट मैं आपके लिए पार्ट बी करती हूँ, ठीक है। तो वंस में आपके पास 1 2 3 है, तो आपने वंस में लिखना है 3, ठीक है। नाउ अगेन फोकस ऑन टेंस। नाउ वी हैव गिवन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्लॉक्स आर गिवन। सो ये हमारे पास 9 ब्लॉक्स जो हैं ये 90 शो कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 9, ठीक है। लेकिन हमने 90 का 0 नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ वंस में हमारे पास 3 गिवन है, तो ये इसलिए हमारे पास 9 है, आपने यहाँ 9 ही लिखना है। 1 2 3 4 5 6, अब 600 है, तो यहाँ आप लिखोगे 6, ठीक है। समझ आइए आपको, इस तरीके से ये सारा आपने करना है। और यहाँ पर भी आपने लिखना है 693, ठीक है। 693 आपने यहाँ भी लिख लिया। अब देखिए यहाँ पर भी आपको वही बात जो मैंने बोर्ड पर भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताई आपको, कि 10 टेंस आपको यहाँ पर गिवन है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टेंस आपको गिवन है। तो यहाँ पर हमें तो ये पता है ना कि ये हमारे पास 110 है, ठीक है, 110 है, तो इसीलिए यहाँ पर ये हमारे पास 3 टेंस है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर देखिए 3 लिखते हैं, फिर ये हमारे पास टेंस है, तो हम 9 टेंस लिखते हैं। 9 टेंस हमारे पास इक्वल टू 90 होता है, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे 9 टेंस, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपने लिखना है 1 2 3 4, तो यहाँ आपने लिखना है 4। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो ये 5 टेंस हैं आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आपने लिखना है 5, और ये 1 2 3 4 5, तो ये 500 है, तो यहाँ पर भी आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो 5 टेंस हैं, 4 वंस हैं और 500, और ये 500 है आपके पास, ठीक है। तो 554 आ गया हमारे पास, तो 554, ठीक है। देखिए तो ये आपके बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं ये होमवर्क में है, डी, ई और एफ। अब यहाँ पर आप पेज नंबर 10 की तरफ आ जाएं, तो पेज 10 पे भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेंशन डेट जी। तो डेट हम मेंशन कर चुके हैं, और ये पार्ट भी मैं आपको बोर्ड पर करवा चुकी हूँ, ठीक है।
और पार्ट सी, पार्ट डी, पार्ट ई, पार्ट एफ और पार्ट जी ये आपका होमवर्क में है। एबिकस भी आपने इसमें एबिकस में बीट्स भी बनाने हैं और इसी तरह आपने इनको फिल भी करना है। पार्ट बी मैं एक बार फिर आपके लिए बुक पे भी सॉल्व कर देती हूँ। ये अब यहाँ पर हमारे पास आएगा 800 4 tens और 1 1। इसी तरह एबिकस में आपने बीट्स बनाने हैं और आपका बाकी के तमाम पार्ट्स आपका होमवर्क है, ठीक है।